So in this lecture, we'll be talking about the concept of citizenship. Firstly, in the very beginning of the lecture, we'll try to explain how can we define citizenship, right? We will try to conceptualize citizenship, and after that we'll be taking a look into कि citizenship का कैसे evolution हुआ है, right? Across human history, we'll be taking a look into that as well. Also, the most important thinker, right? See, citizenship is basically political science वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, right? उनका कोर टॉपिक है. बट सोशोलॉजी में जब बात करते हैं कि कोई सोशोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, दैट इज T.H. मार्शल, राइट? उन्होंने बुक लिखी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, राइट? सो ही विल बी लिंकिंग सिटीजनशिप विद कैपिटलिज्म एज वेल, वो देखेंगे. इसे सिटीजनशिप इन ब्रिटेन, स्पेशली ब्रिटिश कंटेक्स्ट में बात करते हैं, इट इवॉल्व्ड इन 3 stages, right, from 18th to 19th to 20th century. Firstly, civil rights were extended to people. Then in 19th century, political rights were extended, and subsequently after workers movement with the rise of trade unionism and assertive Marxism, various kind of social economic rights were extended to people, which led to the development of welfare state and transformation of exploitative capitalism into welfare based capitalism. We will also be taking a look into, ये बात करते हैं सिविक सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप और सोशल इकोनॉमिक और सोशल सिटीजनशिप की. देन इसी के एक्सटेंशन में मार्क्स में एक कंसेप्ट देते हैं इकोलॉजिकल सिटीजनशिप. वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू आवर एनवायरमेंट, टू एनिमल्स एंड टू आवर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, राइट? प्लस मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि सिटीजनशिप हर, even though it gives the myth of equality, but different people consume it in different manner, right? And there is gradation of citizens, right? कुछ लोग हैं जिनके पास privileges है, wealth है, power है, status है, who are participating in the affairs of the community. They are termed as first class citizens or supra citizens. Then second class citizens constitute the poor, the voiceless, the powerless sections of the society, right? Or people who are being discriminated on the basis of various factors of gender, caste, race, and color and ethnicity. Second class citizens, sub citizens, right? Then stateless or some citizens like Rohingyas, they are stateless citizens living in perpetual misery and hunger and poverty, right? And continuous threat to their life. They have a kind of an identity crisis. So that is stateless citizens. तो इसको हमने लिंक किया इथनिसिटी को स्ट्रेटिफिकेशन के साथ साथ. हम इसमें फेमिनिस्ट और सबाल्टर्न व्यू भी देखेंगे, राइट? तो मार्क्सिस्ट व्यू पढ़ेंगे. और एक एंथनी गिडेंस क्या बोलते हैं? एंथनी गिडेंस क्रिटिसाइज करते हैं मार्शल को. मार्शल बोलते हैं कि एज इफ सिटीजनशिप इवॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैनर एंड नेचुरल मैनर, ही सेज सिटीजनशिप इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट. और इसको इसलिए मार्क्सिस्ट उसमें भी डाला जाता है, काउंट किया जाता है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रगल, राइट? एंड इट इवॉल्व्ड इन basically 2 stages, वो पढ़ेंगे. Then we'll be linking multiculturalism and citizenship, right? We'll be talking about ethnic rights, right? So this will be the brief structure of this lecture. So now we will try to study the concept of citizenship, right? What is citizenship? How do we define a citizen? Citizenship. राइट? सिटीजन हम देखते हैं, सिटीजन अगर हम हिंदी में देखें तो मतलब नागरिक, राइट? नागरिक. माय हिंदी द स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, राइट? सो वी टॉक अबाउट एन इंडियन सिटीजन, अ ब्रिटिश सिटीजन, एन अमेरिकन सिटीजन, राइट? सो सिटीजन से पहले हम एक नेशनैलिटी या नेशन स्टेट जरूर ऐड करते हैं, राइट? तो यहां से हम एक लॉजिक के थ्रू ये बता सकते हैं सिटीजनशिप, राइट? इट रिप्रेजेंट्स और इट मीन्स अ फुल एंड इक्वल membership of a political community.
तो सिटीजन्स, नाउ दिस इज नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, बट हम जैसे जैसे मूव अलोंग करते रहेंगे वी विल ट्राई टू डिसाइफर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड more and more number of elements which constitute citizenship, right? But we have to start somewhere. It means a full and equal membership of a political community. You are a member of a particular political community. You are a member of a, it means a membership of a नेशन स्टेट. और इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था इंडियन सिटीजन. सिटीजन के आगे कुछ ना कुछ लगा होगा, एक प्रीफिक्स लगा होगा, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, राइट. ठीक है. तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि सिंस नेशन स्टेट्स इज अ मॉडर्न कंसेप्ट, राइट, सिंस नेशन स्टेट्स इज अ मॉडर्न कंसेप्ट, राइट. और इसमें भी बहुत कंडीशनैलिटीज होंगी, किन नेशन स्टेट्स में सिटीजनशिप हो सकती है, किन में नहीं होगी, राइट. सिंस नेशन स्टेट्स, वो हम एक्सप्लोर करेंगे. सिंस नेशन स्टेट्स इज अ मॉडर्न कंसेप्ट, वी कैन ऑल्सो से सिटीजनशिप फ्रॉम बाय ड्रॉइंग एन इन्फरेंस दैट सिटीजनशिप ऑल्सो मीन्स दैट इट इज अ मॉडर्न कंसेप्ट, राइट. ठीक है. नाउ इससे मतलब क्या है, सिटीजन होने से क्या मतलब है, राइट. मेंबरशिप मतलब अ सिटीजन, राइट, अ सिटीजन हियर हु इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ही एंजॉयज सर्टेन राइट्स, राइट, ही एंजॉयज सर्टेन राइट्स, उसके कुछ हक होंगे, राइट. ठीक है. he enjoys certain rights and fulfills, right, by being a member of this political community he enjoys certain rights. Apart from that he also needs to fulfill certain duties. उसकी कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस भी होंगी, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस, राइट. ठीक है ना. राइट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम आगे जाके एक स्कॉलर पढ़ेंगे, राइट. टी.एच. मार्शल, अ ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट, टी.एच. मार्शल will be talking about 3 types of right: civil rights, political rights and socio-economic rights. But apart from rights, being a member of a political community, you have certain obligations, right? You have certain obligations to this political community, to the nation state, right, as well as to the fellow citizens, right. ठीक है. तो आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी टुवर्ड्स फेलो सिटीजन्स. अगर आप अपना राइट एंजॉय कर रहे हो तो इस राइट को आप एक लिमिटेड मैनर में ही एंजॉय कर सकते हो, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है. इसका रीजन यही है कि अगर आप एब्सोल्यूट राइट होगा तो वाइल एक्सरसाइजिंग योर राइट देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि क्या है, आप दूसरे के राइट्स को हैम्पर कर सकते हो, राइट. जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिविल राइट, इट इज अ सिविल राइट. अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे देन इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सम अदर पर्सन्स, राइट. यू माइट jeopardize the sovereignty, unity and integrity of the nations, and that is why we say कि rights and duties, इसका मतलब ये है कि these rights are not absolute, rather हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म यूज होती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस,
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। आपको हक है अपना हाथ चारों डायरेक्शन में पूरा घुमाने का, आपको फ्रीडम है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। बट इस हाथ घुमाने के चक्कर में आप किसी को थप्पड़ ना मार दो, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज प्लस ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द नेशन स्टेट। और ये कुछ किस किस टाइप की ऑब्लिगेशंस हो सकती है, ड्यूटीज हो सकती है, राइट। आपने देखा होगा, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ा होगा, सेम काइंड ऑफ ड्यूटीज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, इट मीन्स दिस सिटीजन इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जब ड्यूटीज का कंसेप्ट आता है, मतलब दिस सिटीजन इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन द सेंस दैट आप अपने यू विल पे योर टैक्सेस, you will pay your taxes, you will follow the rules and regulations of the political community. Now can we include voting as a form of duty? See, voting is not a duty, it is your right, right, it is your right। और इसको हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल राइट्स में। सो वोटिंग इज नॉट ए ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज दैट पर्सन हु इज गोइंग टू वोट, बट दैट इज नॉट ए ड्यूटी, राइट। आपको वो हक दिया गया है वोटिंग करने का, दैट इज अ फॉर्म ऑफ राइट, राइट। नाउ सी, सिटीजन को हम देख सकते हैं, अ सिटीजन is a member of a political community, right? He is a member of a political community, or being a member of this nation state, he enjoys certain rights, he enjoys certain advantages, right? But in order to form a well organized nation state, right, you also need to have some sorts of duties towards the nation. You have some sorts of duties towards the nation, you have some sorts of duties towards your fellow beings, right? So it is a what? It is a reciprocal relationship, ठीक है, it is a reciprocal relationship। और देखो, you have certain civil rights, political rights, socio-economic rights, right? Plus, see, the benefits is you will get peace, right? What is the role of state? Peace, order and stability, क्योंकि यहाँ पे right to life भी है। Now consider yourself to the people, right, who are not a member, who are not the member, राइट। कुछ ऐसे लोग जो मेंबर नहीं है नेशन स्टेट के या किसी भी स्टेट के, वो सिटीजन्स नहीं है, राइट। सी, दीज पीपल आर व्हाट? स्टेटलेस। These people are stateless, they are living in what? Misery, they are living in what? Poverty, hunger, starvation. There is perpetual threat to their life because there is no nation state to protect them. So being a citizen or being a member of a nation state is very very important, right? So इनको हमने क्या देखा? फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्यास, right? These are stateless people, right? These are stateless people. They are not the citizens of any particular nation state. And उनकी conditions देख लो आप, right? ठीक है. And that is why it becomes very important for you to serve the nation, for you to serve this nation state,
to have certain sorts of duties and obligation towards this political community, towards the fellow citizens, right? This is a responsible citizen. ठीक है, I hope you are able to understand the meaning of citizenship. ठीक है, now citizenship का भी एक extent होता है, right? citizenship भी का एक extent होता है. सिविल राइट्स एंजॉय कर रहा है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है तो लिमिटेड है सिटीजनशिप. पॉलिटिकल राइट्स भी है, सिविल राइट्स भी है, राइट? तो सिटीजनशिप और फुल्ली एंजॉय कर पा रहे हैं. इसलिए मैंने क्या बोला, फुल एंड इक्वल, राइट? प्लस सोशो इकोनॉमिक राइट्स भी होने चाहिए, सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होने चाहिए, बेसिक इंटाइटलमेंट्स होनी चाहिए, बेसिक मिनिमम नीड्स उनकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी दे विल बी एबल टू एंजॉय दीज सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स. हम पढ़ेंगे टीएच मार्शल में, राइट? ठीक है, तो सी सिटीजन का एक जो सेंट्रल कंसेप्ट है, सिटीजनशिप का जो सेंट्रल कंसेप्ट क्या है, सेंट्रल कंसेप्ट और कोर कंसेप्ट is the extension of these political rights, right? Is political participation, political participation, political participation, political participation. This is the core or central concept of citizenship, right? As a member of a particular nation state, you are able to influence its political affairs, right? That is very key, essential, very key or essential elements of a citizenship. तो scholars बोलते हैं citizenships are also only possible in democracies. हम देखेंगे, अभी एक्सप्लोर करते हैं, राइट? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है? या फिर अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो और भी बेहतर है. इट मींस आपकी जो सिटीजनशिप है उसको क्या है, आप और अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो. व्हेन यू आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, राइट? इट मींस आप उतना ही सिटीजन को क्या है, सिटीजनशिप को क्या है, फुल्ली एंजॉय कर रहे हो. नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और फुल एक्सपेंशन होगा जब सिटीजनशिप का फुल एवोल्यूशन होगा. इसका मतलब है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. सिटीजन का स्टेक होना चाहिए इन ईच एंड एवरी, in formulation of each and every laws and policies of the state, right? So that is full extension of citizenship, direct democracy, right? इसके बारे में कौन बात करते हैं? Popular sovereignty, right to vote. या फिर citizenry is involved in some sort of, we can say, activism, right? Civil society activism through pressure groups or interest groups, yeah, by launching social movements, they will be able to influence the policies, laws, right, of the गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहां से कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि सिटीजनशिप, राइट, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स यही बोलते हैं कि सिटीजनशिप्स, राइट, सिटीजनशिप इज only possible in डेमोक्रेसीज में ही पॉसिबल है सिटीजनशिप्स, एंड नॉट इन ऑटोक्रेसीज, मोनार्कीज और
यहाँ पे लिख सकते हैं हम एब्सोल्यूट मोनार्की, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सिटीजनशिप पॉसिबल है, राइट। और डिक्टेटरशिप्स, लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सी, जब हम बात करते हैं राइट टू वोट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और पॉपुलर सोवरेनिटी, राइट, दिस इज अ सेपरेट केस। सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स। इट मीन्स अ सिटीजन हु इज एक्टिव, अ सिटीजन हु इज पार्टिसिपेटिंग in politics and shaping the administration as well, right? It means then he is an integral member of this political community, right? He is influencing the various laws, rules, regulations, policies, right, guidelines of the state political community, या फिर हम लूज मैनर में देखें तो उसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, right? So this is only possible in democracies and not in autocracies or absolute monarchies or dictatorships, right? तो स्कॉलर्स ये बोलते हैं बिकॉज डेमोक्रेसीज गिव्स यू सर्टेन राइट्स, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द ओनली सिस्टम इन विच देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट्स टू द पीपल, राइट। तो यहां पे क्या है, सिटीजनशिप और नेशन स्टेट या पॉलिटिकल कम्युनिटी या गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, इनके बीच में क्या है, टू वे रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप है। ठीक है, आप सर्टेन राइट्स एंजॉय कर रहे हो, सर्टेन राइट्स एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये राइट्स आप तभी एंजॉय कर सकते हो जब स्टेट अपनी ड्यूटी फुलफिल करे, स्टेट अपनी ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस फुलफिल करें, तभी तो आप अपना राइट एंजॉय कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, नाउ दीज ऑब्लिगेशंस कुड बी नेगेटिव फंडामेंटल राइट में, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्टेट शैल नॉट अंडरमाइन और स्टेट शैल नॉट फॉर्मुलेट एनी लॉ विच इज गोइंग टू अंडरमाइन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, स्टेट शैल नॉट formulate any law, right, which illegally or unjustifiably, right, snatches away life of the people. But this is not possible in autocracies and dictatorships, right? They can kill anyone they want, right? Right to freedom of religion, right to equality before law. State shall not discriminate while formulating policies on the basis of sex, gender, caste, creed, class, right? So these are negative obligations. बट पॉजिटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव किस केस में होंगी? पॉजिटिव केस में होंगी जब बात होगी सोशो इकोनॉमिक राइट्स की, राइट। सर्टेन बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देना है, देन इट बिकम्स पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, राइट, टू इंश्योर ऑल राउंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, राइट, सो दैट उसका फुल मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, ऐसा एनवायरमेंट बनाए, राइट। बेसिक मिनिमम एंटाइटलमेंट्स दे। हम मार्शल में इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो पॉजिटिव जैसे आपका हो गया डीपीएसपी, जो स्टेट को करना है। नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके साथ में ड्यूटीज भी होंगी। ड्यूटीज कौन सी होगी? जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसी के बाद ही आप रिस्पॉन्सिबल एक्टिव सिटीजन बन पाओगे देश के, राइट। तो यहां पे आपकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी, राइट। और इसका मतलब क्या है? सिटीजन क्या है? जो पार्टिसिपेट करता हो नेशन स्टेट के अफेयर्स में, और क्या है? अकाउंटेबिलिटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। वेयर एज इन ऑटोक्रेसीज, मोनार्कीज और डिक्टेटरशिप, राइट, यहां पे हम बोल सकते हैं पॉलिटिक्स इज अ वन वे स्ट्रीट। यहां पे क्या है? सिटीजंस या सिटीजंस की जगह हम ये बोलेंगे पीपल हैव नो राइट्स एंड ओनली ऑब्लिगेशंस। ओनली ऑब्लिगेशंस होते हैं लोगों के। तो यहां से हम बोल सकते हैं वेयर एज स्टेट और रूलर्स
have no duties or accountability, right? No accountability. They enjoy, rulers enjoy all the rights, पर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम बोल सकते हैं इन दीज डिक्टेटरशिप्स और एब्सोल्यूट मोनार्कीज और ऑटोक्रेसीज, राइट, यहां पे क्या है, देयर आर ओनली रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स एंड नॉट सिटीजन्स. इसमें सिटीजन्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. इट इज लिंक्ड टू व्हाट, सिविल सोसाइटी. अगर एक्टिव सिटीजनशिप होगी तभी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी होगी. यहां हम बोल सकते हैं वाइब्रेंट सिविल स्पेस होगा, then it gives space for development of active citizenship. All right, and this is only possible, all these elements are correlated, this is only possible in democracies which are vibrant, right? Active citizenship, vibrant civil society and vibrant democracies, these are what, interconnected. ठीक है, now this element is very important. इसी को लेके चलते हैं. Now let us try to talk about the evolution of concept of citizenship. ठीक है, now इसमें बेसिकली इसी दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. एक तो एंशिएंट सिटीज में क्या सिटीजनशिप राइट्स होते थे, फिर फ्यूडल ईरा में होते थे या फिर मॉडर्न ईरा में होते थे सिटीजनशिप राइट. और एक स्कॉलर जो टी एच मार्शल है वो टिपिकली ट्रेस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप इन मॉडर्न ईरा. मॉडर्न ईरा में कैसे डेवलप हुई है, फ्रॉम सिविल राइट्स टू पॉलिटिकल राइट्स टू सोशो इकोनॉमिक राइट्स, ये कैसे एडिशन हुई है. तो स्पेसिफिकली अभी हम क्या है, अक्रॉस टाइम पीरियड्स देख रहे हैं, राइट. सी, when you talk about the evolution of the concept of citizenship in ancient, जो ancient city states थी, in ancient city states of Greece, right, ग्रीक जो सिटी स्टेट्स थी, हमने देखा था वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी. इसका मतलब क्या है, यहां पे कंसेप्ट ऑफ सिटीजन होगा, राइट. सिटीजन्स कौन थे, सिटीजन्स दे वर ओनली फ्री मैन, ओनली फ्री मैन कुड बी सिटीजन्स. अब इसका मतलब क्या है, सी, जब मैंने बोला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड लॉज, right, influencing decision making, taking part in decision making or shaping it through your voting, through social movements, right. For example, how farmers were able to shape the policies or laws of the government, right. They pressured the government to withdraw these farm laws, right, through social movements. So it means active participation in the day-to-day affairs, right, or the affairs of the state, not day-to-day, right, that is will be interference. So that is a kind of a political participation. तो ये जो एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, राइट, यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी. मतलब लोग वोटिंग कर सकते थे हर एक चीज पे. इसी का मतलब है कि वो सिटीजन्स थे. दे वर एबल टू शेप द लॉज, डिसीजंस, राइट, ऑफ दीज सिटी स्टेट्स. बट ओनली फ्री मैन वर अलाउड टू what?
So they constituted the citizens of the civic this city states, right? और किसका exclusion होता था? Exclusion to the exclusion of whom? Right, to the exclusion of poor people या commoners. They were not allowed to have any say in the politics or administration of the day. Right? Similarly, यहाँ पे हम बोल सकते हैं apart from these poor or commoners, women were not allowed to have any say in the politics or administration or decision making process. Plus slaves, right? Slaves are also excluded, right? So this citizenship was, हम बोल सकते हैं, limited, right? It was based on the principles of exclusion and hierarchy. Right? ठीक है, तो यहां पे वो क्या करते थे? They could participate in what? Decision making, participate in politics and administration, right? Influence decision making, right? They were voting in different affairs, right? Shaping various kind of economic policies or various kind of foreign policies or various kind of affairs related to the city states, right? So these freemen were people who were propertied, right? Who could pay taxes, right? So only influential people were the citizens. So this is a very limited concept of citizenship, right? Commoners, poor, women and slaves were excluded, right? Or see, scholars like Plato and Aristotle, right? They also talked about this concept of citizenship, and they also justified this extension of citizenship, right, to few, right? This extension of citizenship, right, to few and exclusion of others, right, on the basis of their merit. वो बोल रहे थे खाली these people are merited, right? Women, slaves and commoners or poor do not possess the requisite capability, right? और उनमें उतनी समझ नहीं है और इंटेलिजेंस नहीं है या वो क्वालिटीज नहीं है, मेरिट एंड क्वालिटीज, उनमें वो क्वालिटीज नहीं है, वो समझ नहीं है कि दे कैन पार्टिसिपेट ओनली इन दिस सिटीजनशिप प्रोसेस और इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसीज, राइट? तो इनको वो क्या बोलते थे? दीज आर बेस्ड ऑन, दीज आर ओनली टू द एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेसीज, और एरिस्टोक्रेसीज बोलते हैं दीज आर मेरिटोक्रेसीज, ओनली द इन्फ्लुएंशियल पीपल कुड वोट, ठीक है? उसके बाद सी, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ फ्यूडल इरा, राइट, एब्सोल्यूट मोनार्की, और वहां पे देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एज सच, राइट? बिकॉज सिटीजनशिप के लिए हमने क्या बोला? डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। तो फ्यूडल इरा तक नहीं सिटीजनशिप का आपको एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है, राइट? यहाँ पे बोलते बड़ी ही लिमिटेड एग्जिस्टेंस थी। जो मेन जो कंसेप्ट इमर्ज हुआ है सिटीजनशिप का वो हुआ है विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? सिटीजनशिप का कंसेप्ट इमर्ज हुआ विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसीज, Now this is a modern concept, liberal democracies, capitalism, और हमने ये भी दिखा था कि कैपिटलिज्म के साथ ही राइज हुआ था नेशन स्टेट्स का, अर्नेस्ट गैलर। सो ऑल दीज काइंड ऑफ बिकम मॉडर्न कंसेप्ट्स,
राइट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सिटीजनशिप का राइज हुआ कैपिटलिज्म के साथ, राइट. हम देखेंगे कैसे राइज हुआ, या फिर कैपिटलिज्म का राइज इज अटैच्ड टू द राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज. सो दीज आर मॉडर्न कंसेप्ट्स. और हमने ये भी देखा था कि कैपिटलिज्म के राइज के साथ ही नेशन स्टेट का राइज हुआ है, राइट. 18th 19th 20th सेंचुरी में, पिछले 2-3 सेंचुरीज में ही सिटीजनशिप, नेशन स्टेट और डेमोक्रेसीज का राइज हुआ है, राइट. उससे पहले ऐसे प्रेवलेंट नहीं थी ये सारी कंसेप्ट्स, राइट. ठीक है, तो वो देखेंगे. फिर यहां से सी फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज फ्यूडलिज्म में कुछ नहीं था. दिस इज द थर्ड स्टेज, दिस इज फर्स्ट, राइट. सेकंड इज फ्यूडलिज्म में फ्यूडल इरा, दीज आर बेस्ड ऑन मोनार्कीज, राइट. नो कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है. अल्टीमेटली फिर इवोल्यूशन कैसे होगा कैपिटलिज्म में, उसकी बात करेंगे. टी.एच. मार्शल, he will be writing, he wrote a book Citizenship and Social Class. और अल्टीमेटली एक्सपेंशन होगा सिटीजनशिप का, एक्सपेंशन ऑफ सिटीजनशिप, राइट, विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. और इसी के बारे में बात करते हैं फ्रांसिस फुकुयामा, राइट. आई वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन, सो आई होप यू हैव ड्रॉन दिस काइंड ऑफ चार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज. मैं फोर्थ स्टेज आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट. एक्सपेंशन ऑफ सिटीजनशिप हैज टेकन प्लेस विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसीज, राइट. और दिस इज व्हाट वाज आर्ग्यूड बाय फ्रांसिस फुकुयामा विद, जो बात कर रहे थे एंड ऑफ हिस्ट्री, राइट, विद द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, collapse of communism, Western liberal democracies or capitalism has won, democracies are expanding, right. 1960s 60s और 70s में 1/3 डेमोक्रेसीज थी, 90s तक आते आते 2/3 डेमोक्रेसीज हो गई है. कम्युनिज्म कोलैप्स कर गया है, डेमोक्रेसी हैज बिकम अ वैल्यू, राइट. आई होप यू आर राइटिंग दैट डाउन. एंड द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, जहां जहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, राइट, दिस हैज बिकम अ यूनिवर्सल वैल्यू. एवरीवन, all the members of these different political communities, they are vying for extension of this democratic political system, and thereby expansion of democracy के साथ we are also witnessing expansion of citizenship, right, to the fullest extent. fullest extent क्या होगा, यहाँ पे vibrant civil society होगी, active citizenship होगी, right. वो तो क्या है, उसका full पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, राइट. लिमिटेड नहीं होगा. फुल मतलब नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द पीपल, कितने सेक्शंस इन्वॉल्व है, राइट. फुल मतलब ऑल द सेक्शंस, दैट इज व्हाई इट इज इक्वल, राइट. प्लस टू द एक्सटेंट दे आर एंजॉयिंग द सिटीजनशिप राइट. हम इसमें ये भी देखेंगे जो पुअर है, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द सिटीजनशिप राइट, एंड दैट इज व्हाई दिस कंसेप्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक राइट्स इमर्ज्ड. इसका इन्फ्लुएंस मार्क्सिज्म की वजह से है, सोशलिज्म की वजह से ये राइज हुआ है, right. So this might also be the critique of Fukuyama. Its very extension of socio-economic rights pertains or explains how socialist movements, workers movements, Marxist activism, right, led to the development of welfare state, will lead to the extension of socio-economic rights to people, right. हम पढ़ेंगे. Now let us try to study the evolution of citizenship in British society, right. British context में कैसे इमर्ज हुआ. और एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे टी.एच. मार्शल, राइट, जिन्होंने एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया सिटीजनशिप का. सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सोशोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सिटीजनशिप इज ऑल्सो टॉट इन पॉलिटिकल साइंसेज, राइट. एसेंशियली उसी में ही ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट. लेकिन हम कैसे पॉलिटिक्स और सोसाइटी को के साथ लिंक करना है, हम उसको सोशोलॉजिकल व्यू पॉइंट देखना है, राइट. तो फर्स्टली टी.एच. मार्शल, now T.H. Marshall, he wrote a book, right. His important work is citizenship and social class. Right. In his work, he talks about evolution
and expansion of concept and practice of citizenship, right, in British society, और ब्रिटिश कंटेक्स्ट में बात करते हैं। राइट, तो बेसिकली he says the concept of citizenship, it evolved in 3 stages, और इसी 3 स्टेजेस के बेसिस पे वो क्या है, कैटेगराइज भी करते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स को भी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इज civic citizenship, civic citizenship, राइट। इसमें बात करते हैं, he talks about extension of civil rights, extension of सिविल राइट्स। इसमें क्या है, सिविल राइट्स एक्सटेंड किए गए टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन, राइट। और ये प्राइमरली 18th सेंचुरी में हुआ, 18th सेंचुरी, राइट। किस टाइप के राइट्स दिए गए, मल्टीपल राइट्स वर एक्सटेंडेड, राइट। फॉर एग्जांपल, right to freedom of speech and expression, all these are civil liberties, right, civil rights. Right to equality, right to equality before law, right. Article 19, Article 14, Indian Constitution, fundamental rights, right. Then he talks about the right to conscience, right to conscience, or right to religion, ठीक है। Then he also talks about right to life and liberty, right to life and liberty, right. And finally, right to property, right to property, राइट। और यहां पे आप बोल सकते हो राइट टू ऑक्यूपेशन, अपनी मन मर्जी का आप ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हो ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। इससे पहले क्या प्रेवलेंट था ब्रिटेन में, सर्फडम, सर्फडम, you are in serf, right, and you have to serve the lord, you cannot move out of the village, right, without the permission of the lord, you necessarily have to practice एग्रीकल्चर, राइट। तो सर्फडम को अबॉलिश किया गया, एंड इट ऑल्सो गेव द राइट टू मूवमेंट, राइट। पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दीज आर सिविल लिबर्टीज, राइट। इसको लिंक कर सकते हो अबॉलिशन ऑफ सर्फडम से भी, राइट। ये सारे राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आना है, राइट। सेकेंड इज सी, नाउ जब ये राइट एक्सटेंड किए गए, राइट, जब ये राइट एक्सटेंड किए गए
it gave these rights gave a push to or a drive for extension of other kinds of rights as well. तो ये कौन से राइट्स हुए सेकंड स्टेज में? अब ये पुश और ड्राइव कैसे मिला ये देखेंगे हम, कैसे लिंक होगा. सेकंड इज पॉलिटिकल सिटीजनशिप. Right, so these civil rights gave a push to or drive for extension of political citizenship or extension of political rights. और ये हुआ 19th सेंचुरी में. ठीक है, it means basically you have a say in the participation, or you have a say, you'll be politically participating in the various affairs of the political community that you are inhabiting or you are a member of. Right, for example, right to vote. आप वोट के थ्रू क्या है, पॉलिसीज और लॉज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. आप एक पर्टिकुलर पार्टी का वोट दे सकते हो, राइट, जिसकी मैनिफेस्टो, जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी सोच आपसे मिलती हो, आपकी थिंकिंग से मिलती हो. जब आप उस पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लेके आएंगे, देन यू विल बी इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, राइट. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो यहां पे भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट, आसानी से नहीं मिला. राइट, वर्कर्स मूवमेंट्स हैव टू बी लॉन्च्ड. वर्कर्स मूवमेंट्स हैव टू बी लॉन्च्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉलिटिकल राइट्स टू वर्कर्स. राइट, तो यहां पे सोशलिज्म का और मार्क्सिज्म का काफी इंपैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से ये वर्कर्स को भी राइट मिले. राइट, और अल्टीमेटली हम देखेंगे, नॉट टिपिकली फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, बट दीज आर ऑल्सो एक्सटेंडेड टू वुमेन एज वेल. राइट, जब फेमिनिस्ट मूवमेंट हुई थी, मैंने बोला आपको लेट 90th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, तो वुमेन को भी वोटिंग राइट्स दिए गए. राइट, सो दिस इज राइट टू वोट. देन ऑल्सो राइट टू contest elections. Right to contest elections. Right, you can also be a part of the political process, an integral part of the political process, right, to contest elections. Right, similarly through civil society activism. Right, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से लिंक्ड है. सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म, सोशल मूवमेंट्स, right, or pressure group activities, you can also influence the policies of the government. Now this is not a right, this is the basically these are the two rights, right. उसको मैंने एडिशनल आपको समझाने के लिए लिखा गया. Right, now how did this civil rights acted as a or gave a push for extension of political rights, or they kind of stimulated the people to ask for political rights as well, और वो एक ड्राइव कैसे लेके आए. See, मार्शल बोलते हैं, if people, the simple logic was this, लोगों का मानना भी यही था, if people have equality before law, if people have, or right, most appropriate statement would be if citizens, right, ये भी citizens हैं लेकिन लिमिटेड सिटीजनशिप है. इसलिए मैंने हमेशा बोला था फुल
and equal membership, right? Full or equal membership. If citizens enjoy equality before law, right? This was their logic. If citizens enjoy equality before law, अगर उनके पास equality before law है, then they should also be extended the political right of choosing their lawmakers. उनके lawmakers होंगे, कौन होंगे, उनको वो राइट भी मिलना चाहिए अगर उनको इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ दे रहे हो. तो इसका मतलब लॉजिकल एक्सटेंशन है, राइट. द थर्ड इज सोशल सिटीजनशिप. थर्ड स्टेज में सोशल सिटीजनशिप. नाउ बोथ सिविल सिटीजनशिप भी आ गई, पॉलिटिकल सिटीजनशिप भी आ गई, एंड बोथ दिस civil citizenship and political citizenship or civil or political rights, they gave a push or drive for extension of, right, extension of socio-economic rights as well. Socio-economic rights as well, and this was done in 20th century. ठीक है. अब सोशल इकोनॉमिक राइट्स में क्या क्या हो सकता है, राइट? राइट टू मिनिमम वेज, राइट टू मिनिमम वेज, राइट, right to or some basic entitlements, right? Entitlements are rights, some basic entitlements, right, which would at least fulfill the minimum needs. They should also be extended, right? Social security, राइट. ये स्पेशली वर्कर्स ने मांगे थे बिकॉज दे हैव कंस्टिट्यूटेड द मोस्ट पुअर सेक्शन. और बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम देखा कि 19th सेंचुरी में कैपिटलिज्म बड़ा ही एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म था, राइट. लार्ज स्केल इनइक्वालिटीज थी, एक तरफ प्रोस्पेरिटी थी, राइट, ओनली फ्यू पीपल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन मिजरी, स्लम्स, डिजीज, राइट. दे वर गेटिंग पीनट्स एज वेजेस, राइट. बहुत कम वेजेस थी उनकी, डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, राइट. सोशल सिक्योरिटी लाइक इंश्योरेंस, पेंशन, ठीक है, और राइट टू प्रॉपर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, राइट. तो ये जो इमर्ज हुए, ये किसके बैकड्रॉप में इमर्ज हुए, राइट. इसका बैकड्रॉप था, राइट, सोशलिस्ट मूवमेंट्स, वर्कर्स मूवमेंट्स, ट्रेड यूनियनिज्म, right? They all asked for the extension of these rights, ठीक है, so that they can enjoy certain basic entitlements, they can enjoy a certain standard of living, right? ठीक है. Now this gave a push, right? 20th century में it gave a push to the rise of welfare state, right? And a replacement of exploitative capitalism by reformative capitalism. कैपिटलिज्म में भी काफी रिफॉर्म्स आए, राइट. दे आस्क फॉर व्हाट? सब्सिडीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन,
redistribution of wealth and subsidies। ठीक है, नाउ ये देखते हैं कि ये इनको पुश क्यों मिला, लॉजिकल एक्सटेंशन क्या था, आर्ग्यूमेंट क्या थे यहां पे। सी, मार्शल का मानना ये है और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना था और जनरल कंसेंसस और एग्रीमेंट उस टाइम पे यही था इन द 20th सेंचुरी, राइट, स्पेशली आफ्टर 1950s। यही एक कंसेंसस और एग्रीमेंट था between scholars, academics, intellectuals, politicians as well, right, that certain socio-economic rights should be extended to people, right। तो ये बोलते हैं without extension of socio-economic rights, right, without extension of what? Socio-economic rights, one cannot enjoy right, or exercise their civil, right, their civil and political rights to the फुलेस्ट एक्सटेंट। ये उनका एक लॉजिक था और आर्ग्यूमेंट था। इसका में क्या मतलब है, राइट। सी, वो बोलते हैं फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, इफ यू वांट टू एक्सरसाइज योर right to free speech, right to free speech, if you want to exercise your right to free speech, then right to education must also be extended to you, right। then right to education, extension of right to education is a natural corollary। ये एक नेचुरल लॉजिक है कि आप जब तक प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं रहोगे तब तक आप प्रॉपरली अपना राइट टू फ्री स्पीच क्या है, ढंग से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। फ्री स्पीच के लिए भी यू शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड, राइट, यू शुड बी अवेयर ऑफ द इश्यूज ऑफ द डे, यू शुड बी एन इनलाइटेंड सिटीजन, राइट। तो अवेयरनेस तो यहीं से ही आएगी, will become aware and enlightened, and only after that you will be able to enjoy this civil right। तो social right, right, this social right is linked to what? civil right। तो जब तक आपके पास ये social right नहीं होगा, ये civil right आप properly enjoy नहीं कर पाओगे। ऐसे ही you can also link extension of social rights to political rights as well, right, until and unless you are properly educated, right, until and unless you are properly educated, right। अगर illiteracy रहेगी, it means it will impact your exercise of right to what, right, you will not be able to exercise this right to vote to the fullest extent possible, right। you will be making your decision making, right, will be, we can say, won't be apt, right, it won't be apt नहीं होगी, and you will not be able to choose quality lawmakers, so it is very important, ठीक है। और सी, आप एक सोशल राइट को भी तभी एंजॉय कर सकते हैं। नाउ दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट, ये तो आपको लेके चलना है।
अगर मैं इसी को भी एक्सटेंड करूं, इस आर्गुमेंट को, दिस यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन, राइट, अगर मैं इसी को भी एक्सटेंड करूं, सी आप राइट टू एजुकेशन भी तभी प्रॉपरली एंजॉय करोगे जब आपके पास, व्हेन यू विल बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, मालन्यूट्रिशन, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज होंगी, तभी तो आप एंजॉय कर पाओगे राइट टू एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है अगर पॉवर्टी हो, हंगर हो, मालन्यूट्रिशन हो, तो यहां पे से क्या होता है, प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, तो आप एजुकेशन भी नहीं ले पाओगे, राइट। सो देयर इज समथिंग विच यू शुड बी राइटिंग, राइट। नाउ से basically what Marshall was arguing, right, if every citizen is equal before law, right, you can write this down, and should therefore be able to choose those who make laws, shouldn't every citizen should also be equipped or knowledgeable and secure enough to enjoy his or her civil and political rights, right, and full responsibilities that come with them, right, you can write this down। See, एक important quote है, वो लिख सकते हो। मार्शल बोलते हैं, right to live the life of a civilized being, right, what are socio-economic rights, right, socio-economic rights encompass right to live the life of a civilized being, right, civilized being, civil political rights according to standards of living prevailing in society, right, each person has the right to live a civilized life according to the standards of living present in the society, ठीक है। और इसी आप इसको लिंक कर सकते हो अमर्त्य सेन के कंसेप्ट से, यू कैन लिंक इट टू अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं, राइट, he says development should lead to what, capability approach थी, आप लिख सकते हो अमर्त्य सेन in his capability approach argues that development should lead to expansion of capabilities of its citizens, right, डेवलपमेंट मतलब सोशो इकोनॉमिक राइट्स, इसको लिंक कर सकते हो, सोशो इकोनॉमिक राइट्स should lead to what, expansion of capabilities of its people or citizens, right। Now this expansion of capabilities will lead to expansion of freedom, expansion of freedom, it should lead to expansion of what, choice। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं that poverty restricts your choices, right, hunger restricts your choices। For example, if you are poor, you are hungry, you are malnutrition, then it is a very high probability that you want to read, right, you want to have education, but this choice or this freedom to have this education will be snatched away from you, you have not extended this right to health care or right to education, right। So it means development should lead to what, expansion of capabilities, you should not be malnutrition, malnutrition impacts your capabilities, impacts your cognitive development। Or for instance, see, even if I have certain minimum socio-economic rights, for example, but I am not earning well, right, and I want to travel the entire world, right, so we can say कि my movement will be restricted, my choice will be restricted, my total autonomy or freedom will be restricted, you are not able to accomplish this,
right? So state has to create an environment through its developmental model, which should be based on capability approach, expansion of capabilities of its citizens, and which will ultimately lead to expansion of freedom and choice, right? और यही से ही दोनों से लिंक कर सकते हो जब आप सोशो इकोनॉमिक राइट्स दोगे, राइट? जब सोशो इकोनॉमिक राइट्स होंगे, अकंपनी करेंगे सिविल राइट्स को, कंपनी करेंगे पॉलिटिकल राइट्स को, राइट? ओनली इन दैट केस इट विल लीड टू फुल intellectual and moral development of its citizens. तो socio-economic rights are very important. Socio-economic rights are very very important. ठीक है. Now see, अब हम बोल सकते हैं कि see, there was a scholar, right, and his name was I am not able to recall his name. What was his name? See, his name was Mark J. Smith. His name was Mark J. Smith, right? Right. He says we can go, right, or further extend this concept of citizenship, not only civil citizenship, political citizenship, social citizenship. We can further extend this concept of citizenship, and he gave the concept of ecological citizenship. He says जब हम बात करते हैं duties and obligations of citizens की, right, because this is also intrinsic to the concept of citizenship, not just right but duties as well, duties and obligations of citizens, right? They also have duties and obligations towards what? Animals, right? We should not just be respecting the rights of our fellow citizens, we should also be respecting the rights of animals, right? एनिमल राइट्स की बात करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट इतना एक्सटेंसिव हो रहा है, राइट? वी आर डेली कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, राइट? ड्यू टू विच जो हैबिटेट है एनिमल्स का और अदर स्पीसीज का, राइट, दे हैव इक्वल, वी कैन से, स्टेक और इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट एंड टू कंज्यूम द अर्थ्स रिसोर्सेज, राइट? तो जैसे जैसे आप फॉरेस्ट को कम करते जा रहे हो, यू विल से दीज एनिमल्स आर कमिंग इनटू ओपन एंड विच आर लीडिंग टू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या फिर जनरल क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, जो पेटा आर्ग्यू करता है जिसके अगेंस्ट, राइट? ऑल्सो दीज पीपल हैव ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स देयर फ्यूचर जनरेशंस, right? Not to pollute the earth, not to consume its resources exhaustively, right? We should also be responsible, right, to look after our future generations, that they should also have enough resources, right, so as to sustain, right, so as to have certain standards of living, right? They should also have the right to नॉन पॉल्यूटेड एयर और क्लीन एयर, राइट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये भी आपकी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सिटीजनशिप, राइट? ऑल्सो ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन टू व्हाट? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये बेसिकली इकोलॉजिकल सिटीजनशिप क्या बोलता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच में क्या है? एक बैलेंस लेके आए, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करें, राइट? तो ये एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट इन्होंने दिया था. मार्शल बात कर रहे थे सोशल सिटीजनशिप की, राइट? तो वो बोलते हैं कैपिटलिज्म
and the concept of citizenship, they are antithetical, or contradictory to each other. They are antithetical or contradictory to each other. और ये किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशली सिटीजनशिप में किस सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट सोशल सिटीजनशिप, राइट? वेयर एज सोशल सिटीजनशिप आर्ग्यूज फॉर व्हाट? इट आर्ग्यूज फॉर व्हाट? सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, राइट? इट मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज through subsidies and redistribution, right? Redistribution and subsidies, certain minimum standards of living, right? Poverty alleviation और poverty elimination. whereas capitalism वो बोलते हैं, वो क्या है? it leads to what? Especially जब वेलफेयर बेस्ड कैपिटलिज्म नहीं आया था, वेलफेयर स्टेट नहीं थी, रिफॉर्मेटिव कैपिटलिज्म ने रिफॉर्म नहीं किया था, उस टाइप के कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म एंड सिटीजनशिप आर एंटीथेटिकल टू ईच अदर. कैपिटलिज्म लीड्स टू व्हाट? इनइक्वालिटी, राइट? एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस. कार्ल मार्क्स जो बोल रहे थे, एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस लीड्स टू व्हाट? एक्सप्लॉइटेशन, सप्रेशन, domination, subordination of workers or the poor or the proletariat by the capitalist or bourgeois or the rich. ठीक है, तो एक चीज वो ये बात करते हैं. सी तो हम लिंक कर सकते हैं. पहले मैंने बोला था दो ही एलिमेंट मैंने बताए थे, राइट? यू कैन लिंक citizenship to vibrant civil society, right? You can link it to what? Democracy, right? इसमें क्या है? आपको क्या है? एक एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा और आपको बात करनी पड़ेगी वेलफेयर स्टेट की, वेलफेयर सिटीजन, राइट? वेलफेयर स्टेट की और इक्वालिटी की, राइट? सोशियोलॉजिकल सिटीजनशिप टॉक्स अबाउट इक्वालिटी. It talks about absence of discrimination, right? It talks about freedom from poverty, right? तो आप लिंक कर सकते हो डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, इक्वालिटी या इक्विटी ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, इक्वालिटी और फ्रीडम जैसे सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम. ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड. सो वी हैव एडेड 2 or 3 एलिमेंट्स मोर. एक एलिमेंट और बचा है विच वी 2 एलिमेंट्स और बचे हैं बल्कि. एक तो डेफिनेटली सिटीजनशिप वर्ड प्रोवाइड्स यू आइडेंटिटी. आई एम एन इंडियन, आई एम अ ब्रिटिश. रोहिंग्यास की क्या है? कोई आइडेंटिटी नहीं है, किस सिटीजनशिप स्टेट से बिलोंग करते हैं, राइट? तो आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो एलिमेंट्स में, या डिफरेंट चीजों को लिंक कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू इनहेंस योर आंसर, राइट? सी कुछ क्रिटिक है इसके, मार्शल की थियरी के बहुत सारे क्रिटिक है, मैं आपको 2 ही बताऊंगा. फर्स्ट, लिमिटेड इन स्कोप. Right? It only talks about evolution, right? You can write this down. It only talks about evolution of citizenship, right? In British context, right? And what about other states, other countries, other political systems, right? What about Germany, France, USA? This is the first critique. Second critique है, it does not give any causal और हिस्टोरिकल फैक्टर्स. वो बस ये बोलते हैं ये ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन उसके पीछे हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या रहे हैं, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स क्या रहे हैं, कौन से कॉजल फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है ये इवोल्व हुई है सिटीजनशिप, राइट? कॉजल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स,
वाई के बारे में बात नहीं करते हैं, बस प्रोसेस एक्सप्लेन करवाते हैं वो, राइट। सी नाउ लेट अस ट्राई टू डिसाइफर व्हाट डज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हैव टू से अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। सी मार्क्सिस्ट, they say citizenship is a bourgeois construct. It is deliberately created by the bourgeois or the ruling class, right? It promotes what? Myth of equality, right? All are citizens, everyone have political and civil rights, but what about socio-economic rights, right? That was not extended to everyone. Also, not everyone will be able to fully participate in citizenship. Everyone does not have equal opportunity to realize this citizenship, right? So citizenship is extended to all, but it is differently consumed by different citizens. So it is a kind of a construct which promotes false class consciousness of equality, but what do we really get is inequality. इसी में ही एक सब पार्ट है, सब ऑल्टर्न थियरिस्ट. इट इज अ डिफरेंट व्यू, बट हम इसको नियो मार्क्सिस्ट से लिंक कर सकते हैं, बिकॉज दिस कंसेप्ट सब अल्टर्न ग्रुप्स कौन होते हैं, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय एंटोनियो ग्राम्स्की. एंटोनियो ग्राम्स्की बोलते हैं कि दोज ग्रुप्स आर सब ऑल्टर्न ग्रुप्स विच आर अंडर हेजेमनी, राइट, जो इन्फ्लुएंस के अंडर है रूलिंग क्लास के, राइट. दो दीज पीपल आर सब ऑल्टर्न ग्रुप्स विच कंसिडर एवरीथिंग टू बी राइट, नेचुरल, प्रॉपर, फेयर एंड लेजिटिमेट. पावर रिलेशनशिप्स भी प्रॉपर हैं, ऑल एग्जिस्टेंशियल रियलिटी इज प्रॉपर, राइट. सो दोज वर सब्जेक्ट टू हेजेमनी ऑफ रूलिंग क्लास. अब इसी सब अल्टर्न कंसेप्ट को सब अल्टर्न थियरिस्ट ने एक्सपेंड कर दिया है, राइट. तो पहले तो वर्कर्स और पीजेंट्स के बारे में बोला ग्राम्स्की ने, अब इसी को एक्सपेंड कर दिया है वो बाय डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कॉलर्स. जैसे डिस्क्रिमिनेशन और इन्फीरियर or treating someone is inferior, it could be on the basis of one's ethnicity, race, caste, gender. So can we say people who are being discriminated on the basis of these primordial identities of caste, ethnicity, race or gender, can we say or term them as equal citizens? Can we say they are enjoying their citizenship right to the fullest extent, or just the myth of equality is promoted, right? तो gender आप इसको लिंक करो स्ट्रेटिफिकेशन से. सिटीजनशिप यू कुड लिंक इट टू स्ट्रेटिफिकेशन एज, क्योंकि हमने देखा था स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रेस, कास्ट एंड जेंडर, राइट. और कास्ट के बारे में गेल ओमवेद करके, गेल ओमवेद OMVEDT, राइट, ये स्कॉलर ये बात करते हैं, ठीक है. तो सी जेंडर के अगर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को क्या बोलेगा लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्फेयर, वुमेन अंडर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, डोमेस्टिकेशन, राइट. वुमेन आर स्टिल रेलिगेटेड टू व्हाट, प्राइवेट स्फेयर, राइट. आप प्राइवेट स्फेयर लिख सकते हो. सो देयर इज अ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्फेयर, लाइक फॉर एग्जांपल इन लेजिस्लेचर्स, राइट, विच यू कैन राइट डाउन, राइट. और एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर में, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फुल पार्टिसिपेशन इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. सो कैन वी से दीज आर equal citizens, or they're enjoying the citizenship right to the fullest extent possible, right? So we can debate on this. ऐसी कास्ट के बारे में गेल मोहम्मद की बात कर सकते हैं, at caste atrocities against Dalits, right? Lack of their representation in different aspects of the society, exclusion, humiliation, feeling of powerlessness. So we cannot say they are enjoying citizenship in an equal manner. So there we can grade citizens. There is hierarchical gradation of citizens, right? There could be multiple classes of citizens, right? Due to differential access to opportunities and privileges in society. For example, first class citizens, yes, supra citizens. These the citizens, right, who belong to the dominant sections of the society. They are rich, powerful, or at least they belong to the middle class, right? They are the people who are the haves. They enjoy citizenship right to the fullest extent possible. Then there are second class citizens, right, who are discriminated against, जिनको oppress किया जाता है. It constitutes what? Poor, weak, voiceless, vulnerable people, right, or the people, ethnic minorities, blacks, right, racial inferiority, वुमेन और कास्ट. उसके बेसिस पे आप सब क्लास सिटीजन पे डिवाइड कर सकते हो. या फिर अब अहमदियाज को देखो इन केस ऑफ पाकिस्तान, they are discriminated against, or Tamils in case of Sri Lanka. Then there are third categories, stateless or non-citizens or refugees, right? These people have no rights. They suffer from crisis of identity. They do not belong to any state,
Right? They stem from extreme deprivation and inequality. There is lack of security of life. There is uncertainty or instability or unpredictability in their life, and they suffer from extreme poverty, misery, and hunger. Right? See, एंथनी गिडन्स बेसिकली मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ही के बारे में ही बात करते हैं और वो मार्शल को क्रिटिसाइज करते हैं. वो बोलते हैं कि मार्शल ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे कि इवोल्यूशन हुआ सिटीजनशिप का बड़ी ऑर्गेनिक मैनर में, नेचुरल मैनर में, एक इंट्रिंसिक मैनर में. राइट? फ्रॉम सिविल, राइट, ड्राइव हमने पढ़ा था, पुश सिविल टू पॉलिटिकल टू सोशियो इकोनॉमिक राइट्स. लेकिन ये बोलते हैं दिस सिटीजनशिप इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट. क्लास कन्फ्लिक्ट का प्रोडक्ट है. हम देखेंगे कैसे. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रगल. तो जैसे जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स थे, फर्स्ट टू कैटेगरी ऑफ राइट्स, they were a fight between the two dominant classes, right? Ruling classes या फिर minorities के बीच में. एक थी बुर्जुआ एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन थे? फ्यूडलिस्ट, राइट? ओल्ड ऑर्डर. तो फाइट अगेंस्ट फ्यूडलिज्म एंड मोनार्की. फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, राइट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट, इवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप आप लिंक कर सकते हो इसको. तो सबसे पहले तो यही बोला गया कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही सिटीजनशिप का कंसेप्ट इमर्ज हुआ था. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी. राइट? फाइट अगेंस्ट फ्यूडलिज्म एंड मोनार्की किसने लॉन्च किया? थर्ड एस्टेट. मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं. राइट? स्ट्रगल वाज स्पीयरहेडेड बाय बुर्जुआ एंड इसी के साथ क्या है? राइट्स डेवलप्ड विद द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म. सो दिस पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स दे डेवलप्ड विद द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म. And they were launched by the bourgeois. Bourgeois advocated for them. Bourgeois fighted for them. Right? For example, right to property. It is a very important right of this liberal democratic or capital system. Second is socio-economic rights. These are the outcome of workers movement, right? Trade unionism or struggle of proletariat against the bourgeois. Right? जो second stage में मिले थे. So this kind of replaced exploitative capitalism was replaced by welfare capitalism with the rise of welfare state or with the emergence of socio-economic rights. So these rights were gained after a long term of struggle. This is a product of class conflict. एक क्लास थी, ये माइनॉरिटी conflict था बुर्जुआ और फ्यूडलिस्ट के बीच में. यहाँ पे माइनॉरिटी conflict है between the proletariat and the bourgeois. Right? Lastly, इथनिक माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जैसे तमिल्स इन केस ऑफ श्रीलंका और अहमदियाज इन केस ऑफ पाकिस्तान. तो हम बोल सकते हैं कि दे शुड ऑल्सो बी अकॉर्डेड रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, right to practice their culture, right to practice their religion, right to practice their different way of life. Right? So multiculturalism क्या इसी के बारे में बात करता है? It promotes diversity and existence of multiple cultures, a reciprocity between them, an exchange between them. एक harmony होनी चाहिए in which there will be a mutual respect or recognition होनी चाहिए, right? In which you will be respecting to other cultures so that there can certain ethnic rights should be extended to these people to follow their cultural practices, right? Or these people considered the most poor, deprived, marginalized sections of the society. For example, Bangladeshis in case of UK हमने पढ़ा था, और अहमदियाज और तमिल्स, राइट, और इथनिक जो माइनॉरिटीज हैं, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है इन केस ऑफ दिस वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज. राइट? बट इसका एक काउंटर करते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. इट वीकन्स सॉलिडारिटी. फॉर एग्जाम्पल कल्चरल नेशनलिस्ट और एथनिक नेशनलिस्ट यही प्रपोज करते हैं. इट वीकन्स सॉलिडारिटी. It kind of undermines the proper development of common civic space. Common civic space का proper development नहीं हो पाएगा. Uniform civil code और common conscience नहीं develop हो पाएगी. ऐसे it promotes reactionary, outdated and discriminatory practices. See, in the name of following multiculturalism, in the name of allowing these people to follow their cultural practices, right? You cannot allow or promote them to have reactionary practices, conservative outlooks, right? For example, these communities they also have certain anti-women practices, right? Inhumane practices like their views and opinions to transgenders. So you cannot allow these cultural practices or negative practices to follow. You need to reform them. So you cannot completely give autonomy or to them to practice their cultural rights, right? There has to be development of common civic space. So sexuality से भी लिंक कर सकते हो. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी, कैन वी कंसीडर देम एज इक्वल सिटीजंस? नो, राइट?